Morning. Good morning, everyone. So, guys, today is the first session for Java, and I will be starting from Java JDK installation. What is JDK installation? And in order to work on Java, what all software we may need. So, in today's session, I will install everything, and I want you guys also to install in your laptop in order to do practice and all. So, see, if you'll see this course. I have written the first topic as a JDK installation. And when we install the JDK, what all things happen behind the scene, I will discuss that one as well. So if you'll see like a JDK installation, this is the first topic, right? So what is JDK? If someone is asking what is JDK, so let me open the notepad. I will try to write something down there. So JDK. If someone is asking, it's a simple Java development kit. Sometimes let's say if you are going for any in any mall or somewhere, so let's say you are purchasing something, right? So the representative or someone who is selling the item, they will say like, no, this is a kit, Java development kit, let's say kit. If someone is saying what is kit, the meaning of kit is nothing but it is having combination of every software. Java is nothing but a language. Development is nothing but to develop a application, right? To develop an application. So whatever software is needed to develop an application, JDK is having. See, it's kit, we can say. It's combination for all the software which required to develop an application. It's combination of everything, all the software which may need in order to develop an application, it will be there. So that is what we are going to install in our system. So JDK. And before installing this, what I will recommend you guys, just check whether maybe it is already installed in your system, right? So just check how to check whether your system is already having the JDK or not. So go to search, Windows search, right? So type CMD, right? Command prompt. So if you write command prompt here, so this window will get opened, right? So just check like no Java hyphen version here. This command you have to write and press enter. And if you are getting any detail here, like see this Java version 1.8, it means I have already Java in my system, right? So same way you have to check before installing Java, right? Maybe you have already Java, then you don't need to install it, right? So just check with this command. If you are having, don't need to do anything else. What you have to do is, let me show you. अगर आप Java नहीं है, then in that case what you have to do is, just give me 1 second. Let me close this one. So download, you have to go to Google and just type download JDK. Download JDK. Okay. So if you will write like this, what will happen? It will take you to the official site of Oracle. See this. This is official site and Oracle is the owner of Java, right? So if you'll go here, go to click on this link, it will take you to the latest version of Java. See this latest version Java is being used 19, right? See this Java 19 and 17. But what I would recommend, no, go for Java 8 because 99% company as of now they are using 99. I would say they are using Java 8 as of now. And I think even see there was big shift from Java 7 to Java 8. So earlier people were using Java 7. Now most of the company they are using Java 8 because from Java 7 to Java 8 there was huge difference. I will discuss the difference as well whenever I will touch the topic related to Java 8. But what I'm trying to say here is just download Java 8. So how to download Java 8? Let's say if someone is trying to download Java 8, so what you have to do is just mention JDK 1.8. 1.8 is nothing but, let's say if I'm mentioning 1.7,
7. So 7 is last one is saying the version. Let's say Java 7, Java 8, Java 9. So this last one is saying the version actually. So we are talking about Java 8, right? So just write down download JDK 1.8 like this way. So it will take you again the Oracle, the official site, and now it will show like Java 8. So here if you'll see, come little bit down here. So here if you'll see, there are so many Java application available. See, for window, we have this exe file, right? For window. For Solaris, right? These are the files. If you'll go to the Mac, if you have Mac machine, then this is file you have to download. If you have Linux, then these are the file you have to download as per the configuration. So since I think most of the people in this batch would be using window, right? If anyone is having Mac or any other, they can download as per their configuration. Let's say we are having window, right? So I will be downloading window exe file, see this. But which one should I download? And should I download this one or this one? So you have to see the configuration. If your system is 64 bit, then how to check the whether my system is 64 bit or 86 or 30? 86 is nothing but 32 bit. Just assume like 32 bit is nothing but 86. If your system is 32 bit, then you have to download this exe file. And if your system is 64 bit, then you have to download this JDK, means JDK exe file, right? So how to check which version of your window is? So to check that, what I would say, right, go to again something like and write this. If you have the latest version, see this, go to this, or maybe the PC. Sometimes you are seeing this symbol, right? Right click on this symbol, maybe see this, right click and go to properties. So since I'm using window, if you'll see this window 8, and here if you'll see like the system type, right? System type 64-bit. Maybe you'll be having 32-bit here. If you are having 32-bit system, it means you have to download this one, right? Else you have to download this one. My system is 64-bit, right? See this. So I will have to download this one, 64-bit one. 86 is nothing but 32-bit. Make sure there should not be any confusion, because see, if let me show one more thing, like go to C drive. See here, there are two folders, program files, right? There are two folders. One is program file and second one is also the program file only, but with 86, right? So 86, let's say you have installed two softwares. One software is for 36-bit, 32-bit, and another software is for 64-bit. So the software which is for 64-bit, it will goes to this folder. If the software which you have installed is for 32-bit, it will goes to this folder. Let me say like in that way. अगर आप इसको इंस्टॉल करते, जस्ट इमेजिन आप इसको इंस्टॉल करते, सो उसकी जावा की जो फाइलें होती, लेट मी शो यू, अभी देखोगे क्या, जावा फोल्डर यहां बना है, राइट? क्योंकि मैंने 64 बिट के इंस्टॉल किया है, तो 64 बिट वाला, इफ यू सी दिस 64 बिट, कोई भी सॉफ्टवेयर which is having 64 bit configuration, it will come under this folder. So मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो it means the file java file will be created inside this program file. लेकिन अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता, so java folder इसके अंदर बनता. तो 86, see this 86, why they are mentioning 86? Because 86 is nothing but a 32-bit and they have separate folder for 86, and for 64-bit they have separate folder.
here they have not mentioned like 64 bit. They are by default they are assuming कि अभी 64 bit सारा support कर रहा है, so that is the reason they haven't mentioned like 64 bit here. बस 32 bit के लिए इन्होंने mention कर दिया 86. Hope you guys understood this, right? Any question? ये folder wise जो मैंने बताने की कोशिश करा. Any question here? In layman we can say like अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर 32 बिट का अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, so it will go inside this one. अगर आप 64 बिट का इंस्टॉल कर रहे हो तो it will go inside this one. अब ये है कि सर मेरा सिस्टम तो 64 बिट का है, राइट? See, my system is 64 bit. Can we install 32 bit as well? Obviously. अगर आपका हायर वर्जन सिस्टम है, आपका वर्जन देखिए मैं 64 बिट वाला सिस्टम है, राइट? सो इन दिस सिस्टम I can install lower version as well. Means 32 bit वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा. ऑब्वियसली आप कोई मोबाइल हायर वर्जन का ले लो तो आपको लगता है मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन है तो क्या पुराने वर्जन वाले सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा. तो हायर वर्जन हमेशा लोअर वर्जन को सपोर्ट करता है. सिमिलरली हियर 64 बिट का मेरा सिस्टम है लेकिन 32 बिट वाला भी इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा. इसीलिए इन्होंने दो फोल्डर बनाया है कि आपका सिस्टम तो 64 बिट का है लेकिन 32 बिट वाला इंस्टॉल करते हो अगर, तो वो फोल्डर यहाँ पे है, यहाँ पर सारे प्रोग्राम आएंगे. सो what you have to do is see this. When you will click on this exe file, it will start downloading. Let me click on this. What will happen next? When you click on this exe file, see this. This page will one pop up or one dialog box will be open. See here, you have to check this, right? You have to check this and download. Click on download. See this. Okay. So when you click on this, it will ask credential. Credential like. Let me show you. See this Oracle credential. See, it's like, see, if you're not having the credential, then create account. So like the way we create Facebook account or Gmail account or any other account, similarly, you can create this account as well. And you can pass the credential here and you will sign in. The moment you will sign, automatically it will start downloading it. Just sign करना है आपको, that's it. यहाँ पे login करना है और अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. बाकी और कुछ नहीं करना है. तो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो let me see whether I have this downloaded folder on my local machine here. So 1 second. See this, right? So this is one which I have downloaded. Same, right? 64 bit and 8. See this 8 version Java 8, right? So ये आपका डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड फोल्डर में. It's very simple. See, this is application, right? So ऐसे ही आपके सिस्टम में भी डाउनलोड हो जाएगा. और after downloading it, what you have to do is just double click on it. Double click. So double click करने के बाद it will start installing in your system. See आपका pop-up आएगा जिसमें see this and say like yes, and I have already installed it, so I will not install, but I will let you know what need to be done. Just let me show you. So do you want to allow the program to make the changes? Yes. See this, it's coming here. So कह रहा है कि this software has already been installed in your system, right? So ये कह रहा है कि मेरे सिस्टम में already है, तो would you like to reinstall it? तो मैं yes कह सकता हूँ, right? अगर मैं yes कहता हूँ, let's see. तो पहले क्या करेगा, प्रीवियस वालों को रिमूव करेगा. सीरीज पिछला वाला जो है उसको रिमूव कर रहा होगा जो पहले से इंस्टॉल्ड है, क्योंकि फिर से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, राइट? सो ये हटा रहा है पिछला वाला, प्रिपेयरिंग टू रिमूव द प्रीवियस वन. See some pop-up has come behind the scene. Okay. Just wait for some time, I think. Yes. So it started installing. You have to just
keep watching it. You don't need to do anything. See this, ये आपको विंडो आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, दैट्स इट. Don't do anything. Just click on next, next, and finish. That's it. So Java installation is very easy task, right? Just need to download the exe file and double click on it. It will get automatically installed. My system is taking a little bit more time. Uh, it depends on system to system. See, now successfully installed, right? And close. That's it. Now again you can check the version, right? So how to check the version? You can open the cmd command prompt, right, and write the same command, java hyphen version, and it will tell you the java installed version, right? Let me show again. Cmd, just mention cmd and java hyphen version, and if it is installed it will tell you the version as well. See this. So hoping that you guys understood this, right? Now Yes. ये okay, so jdk install करने के बाद what you have to do is you need to install one editor as well. Editor किस लिए जरूरत है? अगर someone is asking क्या बिना एडिटर के हम कोड नहीं लिख सकते? I can write the code without editor as well. But why do we need editor? What is the reason behind it? See this. I'm using this editor, right? To write the code and all. अगर आप देखेंगे तो हमने ये बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं. ये एडिटर है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं. बिना एडिटर के भी आप कोड लिख सकते हैं, बिना एडिटर के भी आप कोड रन कर सकते हैं. देयर इज नो एट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एडिटर. बट क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, अगर मैं एडिटर की बात करता हूं तो लेट्स से कि अगर मैं कोई कोड लिखता हूं, लेट्स से, लेट मी क्रिएट वन न्यू. Just imagine I have created one project here, right? And inside this, I will repeat this one as well, guys. Don't worry. So let me create one class, simple class. Hello, package name, class. Let's say first demo something. So देखिए, what I am doing is ये मेरे को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, हर चीज पे मुझे हेल्प कर रहा है कि आप यहाँ लिखो, ये करो, वो करो. लेट्स से कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ, जस्ट इमेजिन, तो सी दिस इज सेइंग लाइक दिस इज रॉन्ग, सिंटैक्स एरर समथिंग. सो बिना एडिटर के अगर आप लिख रहे हो कोड, लेट्स से आई एम राइटिंग द कोड हियर ऑन द नोटपैड. Just imagine I have created one class, same class here, the same thing. The class, let's say I'm mentioning public class demo. I can write the code here as well, and closing bracket, and here I'm writing something, right? Something wrong. See, I'm not getting any suggestions. Nobody is going to say like, yeah, you have written the wrong code here. But Eclipse, if you're writing the same code in editor will help you, like what mistake you are doing, right? See here, it is saying like you have done some error. See, this is not correct.
सो एडिटर यूज करने के पीछे बस यही पर्पज है कि इट विल हेल्प यू टू राइट द कोड इन अ प्रॉपर वे, in a proper syntax. There will be a lot of help when you will write the code. So you will understand when I will write the code in detail. So अभी यही same code जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो nobody is going to say like yeah your code is wrong or something you need to improve. There is no information at all. But editor will help you. So I will run the code from Notepad as well without using the editor. I will show you how to run the code from editor as well without even Eclipse. I will run the code simply. Okay. So let first my focus would be installation part today, and we'll run at least one or two code as well without editor. So we'll see like कैसे हम notepad से run करा देंगे code बिना किसी Eclipse के या बिना किसी editor के. We'll see that. So JDK installation I believe it's very much clear. Now let's talk about editor as well. So editor मैं इंस्टॉल करवाना चाहूंगा, आप लोग अपने सिस्टम पे भी ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिएगा, JDK एंड Eclipse आपको इंस्टॉल करना होगा. Eclipse. So JDK आपने इंस्टॉल कर लिया, Eclipse अब Eclipse इंस्टॉल करना है तो सेम वे, गो टू गूगल एंड write the same requirement. I need to download Eclipse. Let's say download Eclipse. Eclipse, right? And I always recommend the neon because see, let me show you, let me write the same thing, download Eclipse only, and it will take you the latest version of Eclipse. It will always take you the latest version. अभी लेटेस्ट वर्जन देखेंगे Eclipse का तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, let's say I'm clicking on this one or some other this one, let's say. So what will happen, let me show you. So this, see this, Eclipse is getting downloaded similarly, but this version I don't want to download. Reason being is, let me show you why I don't want to download this. Downloading is again very easy because see, this is exe file, right? The way we download Java, same way we can download the Eclipse as well. And since this is exe file, exe, this, see this extension, right? See, this is the exe file. So आपको just double click करोगे ये भी install हो जाएगा. You don't need to do anything. Just need to double click. That's it. So, but why I'm not recommending this, I will show you. That is what I'm trying to show here. Let me go to this. Instead of download folder, let me go to the documentation section. See this. This is the documentation section actually. अगर आप देखेंगे, so अगर let's say again the configuration here, अगर आपका विंडो है एंड लेट्स से 32 बिट है या 64 बिट है, दोनों में से कोई है तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइट? आप देखें तो इक्लिप्स का अगर आप देखोगे तो इक्लिप्स के बहुत सारे वर्जन हैं, इतने सारे इक्लिप्स हैं. आपको क्वेश्चन अराइज होगा सर विच वन शुड आई डाउनलोड, राइट? सी, इतने सारे इक्लिप्स है तो कौन सा डाउनलोड करूं, पहला चीज, राइट? तो अब देखेंगे कि मैं रिकमेंड करता हूं जावा डेवलपर. आपको जावा डेवलपर क्यों रिकमेंड करता हूं, क्यों नहीं ये रिकमेंड कर रहा है? क्योंकि आपको वेब एप्लीकेशन नहीं बनाना है. वेब एप्लीकेशन जैसे इक्लिप्स क्या करता है आपका बिहाइंड द सीन, वो हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें हेल्प करेगा आपका. तो आपको हेल्प किस लिए करेगा? आपको तो ऑटोमेशन करना है, आपको वेब डिजाइनिंग तो करनी नहीं है, वेब एप्लीकेशन तो बनाना नहीं है, तो हमको तो इसकी जरूरत है नहीं, वेब डेवलपर, राइट? ध्यान सुनिएगा, देर सी प्लस प्लस वाला तो हमें चाहिए नहीं, राइट? ये कुछ कमिटर है जो कि हमारी जरूरत ही नहीं है, राइट? सो ऐसे मैं मैं रिकमेंड ये देख करके ये जावा डेवलपर को करता हूं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है गिट की, राइट? गिट की जरूरत पड़ेगी, मेवन की जरूरत पड़ेगी. बीइंग एन ऑटोमेशन इंजीनियर हमें गिट की एटलीस्ट जरूरत है, मेवन की जरूरत है, और ये कम से कम कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें जरूरत है. कम से अगर ज्यादा वाला करोगे तो आपका रैम भी ज्यादा खाएगा. इक्लिप्स हम तो अगर ये कर लोगे देयर विल बी नो इश्यू एट ऑल.
आपका बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, देयर विल बी नो इशू एट ऑल। बट इशू विल बी लाइक कि आपका ये ज्यादा मेमोरी लेगा एज कंपेयर टू दिस वन। आपका रैम मान लीजिए लेट्स से 4 GB का ही है, राइट, और उसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, सो इट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी फ्रॉम रैम, राइट। तो रैम से मेमोरी लेगा तो आपका क्या होगा, सिस्टम स्लो चलेगा। तो बेटर है कि जो हम ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो हमारे लिए तो पूरा जो पूरा उसमें हो, एक्स्ट्रा ना हो। एक्स्ट्रा क्या करेंगे झूठ में, जो हमें जरूरत ही नहीं है। तो दिस सॉफ्टवेयर, दिस इक्लिप्स इज हैविंग ऑल द सॉफ्टवेयर, दैट इज द रीजन। So you can go for this one if you want, but the most stable version which I feel is Neon, Eclipse Neon. So you can download any version, it's up to you, but what I would recommend is go for Eclipse Neon and Java developer. Maybe you can click here, right, and download this again. See here they have separate 32-bit and 64-bit. If you click on it, again depend on your system configuration. If your system is 32-bit, download this one, click on this one. If your system is 64-bit, download this one. ओके, सो ये गड़बड़ मत करिएगा, अदरवाइज आपका इक्लिप्स इशू मारेगा। अगर आपका सिस्टम 64-बिट का है तो यू हैव टू डाउनलोड 64-बिट ओनली। जावा भी आपको 64-बिट होना चाहिए और इक्लिप्स भी 64-बिट होना चाहिए। एंड अगर आपका सिस्टम 32-बिट का है तो जावा भी 32-बिट, बेटर है कि जावा 32-बिट करो एंड इक्लिप्स भी 32-बिट करो, सब कुछ कंपैटिबल रखो तभी चलता है। कभी कभी आप देखिएगा इंस्टॉल करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सम एरर, तो वो तभी होता है जब आप वर्जन का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रहे हो, तो वो होना चाहिए। सो आप जब इसको क्लिक करोगे, सो अगेन सी दिस हियर, इट इज जिप फाइल, zip file. See, it is getting downloaded. It's not a exe file. Let me cancel it since I have already this सॉफ्टवेयर इन माय सिस्टम। सो अब जिप फाइल होगा, देखिए जिप फाइल मेरे पास है इक्लिप्स का। सी दिस, ये जिप फाइल आप डाउनलोड हो जाएगा इक्लिप्स नियॉन का करोगे तो आप। और इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। राइट क्लिक करोगे उस जिप फाइल पे और एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, ये फोल्डर बन जाएगा। सी दिस, ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट करते ही आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, इक्लिप्स वाला फोल्डर मिल जाएगा, राइट। जब इसको आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट क्लिक करते हैं, देखो एक्सट्रैक्ट हियर आ गया। इस पर क्लिक करते ही आपका ये जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको इक्लिप्स फोल्डर मिलेगा। यही इक्लिप्स फोल्डर की हमें जरूरत है। आपको करना क्या है, इस पर ये जो सिंबल बना देखिए यहाँ पर हमने ये ये टास्क बार में मैंने रख लिया है। आप भी अगर टास्क बार में रखना, यहाँ दिखना चाहते हो कि यहाँ दिखे ये सिंबल, तो आपको क्या करना होगा, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ। अनपिन मतलब होता है यहाँ से हटा दें टास्क बार से, देखिए हट गया। अब आप आपका क्या है, ये चीज मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ लेट्स से टास्क बार में। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर आएगा पिन टू टास्क बार आना चाहिए। 1 सेकेंड, सी दिस, क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए फिर राइट क्लिक करिए, राइट, सी दिस। सो जब पिन टू टास्क बार करेंगे तो ये यहाँ दिखने लगेगा, देखिए यहाँ दिख रहा है। तो आप इसको इधर उधर कर सकते हो, जहां भी रखना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सी दिस। सो यहाँ आ गया। अब या तो आप यहीं से डबल क्लिक कर दोगे तो आपका इक्लिप्स खुलना शुरू हो जाएगा, देखो यही है इक्लिप्स। ये जब फर्स्ट टाइम खुलेगा आपका तो इट विल आस्क द पाथ। सी, ये पाथ मांगता है, देखिए ये वर्क स्पेस थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, ये बहुत बार आपसे टेक्निकली बात जब करेंगे टीम वाले तो वर्क स्पेस पूछते हैं कि कौन सा वर्क स्पेस है बता दो मुझे, ऐसा डिस्कशन होता है। सो गाइज वर्क स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये समझना रहता है। वर्क स्पेस इज नथिंग बट वर्क वेयर द स्पेस वेयर द वर्क विल बी सेव्ड।
वो स्पेस बताओ, वो जगह बताओ जहां पर आप जितना भी कोड लिख रहे हो ना, इक्लिप्स में कोड लिखते हैं, तो वो कोड कहाँ सेव होगा, वो पाथ यहाँ बता दो, उसी को वर्क स्पेस बोलते हैं। याद रखना ये चीज। तो हमने बोला है कि हमारा वर्क स्पेस आप डेस्कटॉप पे बना सकते हो वर्क स्पेस। से एक फोल्डर मैं यहाँ बनाता हूँ कि एक फोल्डर ऑल कोडिंग related stuff, just imagine I'm writing like in that way, related stuff। तो ये हमारा फोल्डर है। अब मैं चाहता हूं कि जितना भी इक्लिप्स में कोड लिखूंगा, यहाँ कोड लिखूंगा, यहाँ पर सो ये सारा कोड हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो, जो इस फोल्डर के अंदर सेव हो। तो मैं क्या करूंगा, इसका यही तो है, ये पाथ मैं कॉपी कर लूंगा, देखो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। इस पाथ को कॉपी कर लो, यही तो फोल्डर है जहां पर हम चाह रहे हैं कि कोड सेव हो जाए हमारा, राइट। सो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये डाल दूंगा, राइट, सी दिस, एंड इसको ओके क्लिक कर दूंगा। तो ये वर्क स्पेस इज नथिंग बट इन सिंपल टर्म्स जहां पर आप कोड अपना सेव करना चाह रहे हो। इक्लिप्स में लिखोगे लेकिन वो लोकल में किसी सी ड्राइव, चाहे डी ड्राइव, चाहे ई ड्राइव, चाहे किसी भी ड्राइव में सेव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इक्लिप्स जब बंद कर दोगे तो वो लोकल ड्राइव में किसी में सेव होना चाहिए। तो ये वो प्लेस है जहां पर सारा कोड आपका सेव होगा। सो ये जब आप कर दोगे ओके, तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए, और देखिए यहाँ पर एक इक्लिप्स अपना मेटा डेटा बनाता है। ये फोल्डर में भी कुछ नहीं था, यही था, ऑल कोडिंग रिलेटेड स्टफ में कुछ नहीं था। लेकिन जो आपने पाथ वहां सेट किया इक्लिप्स में, जो पाथ मांग रहा था, वो अपना मेटा डेटा एक फोल्डर बना देता है। मेटा डेटा फोल्डर मतलब ये इक्लिप्स समझेगा कि हमारा फोल्डर यही है। ये कुछ अपना निशानी छोड़ देता है, समझ लो कि यही फोल्डर है जहां पर मुझे कोड सेव करना है। अगर ये हटा देंगे तो इक्लिप्स अभी भूल जाएगा कि कहाँ मुझे कोड सेव करना है। तो ये मेटा डेटा मतलब, मेटा डेटा इज नथिंग बट एक एक अपना पहचान छोड़ रहा है कि इसी फोल्डर में मुझे सारा कोड सेव करना है, राइट। तो ये फोल्डर, देखिए, आप पहली बार जब इक्लिप्स खोलेंगे तो बिल्कुल वेलकम स्क्रीन आएगा सीधे, वेलकम स्क्रीन है, वेलकम, राइट। और इसमें क्या है कि आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यार इसको कैंसिल कर दीजिए, अब तो कोड लिखने वाली बात है, ट्यूटोरियल नहीं जाना है, कुछ ऐसा नहीं करना, ये सब नहीं करना है, जैसे इमेजिन। तो हमें क्या करना है, कोड लिखना है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, क्लोज, देखिए क्लोज ऑप्शन आ रहा है यहाँ भी, या वर्क बेंच पे आप क्लिक कर सकते हैं, बोथ में से किसी पे भी कर सकते हैं। हम कैंसिल कर रहे हैं। तो देखिए इसको ब्लैंक स्क्रीन, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन, नथिंग इज देयर इन दिस प्रोजेक्ट, सीधे कुछ भी नहीं है इसमें, आप बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ कोड नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है। तो ये इंस्टॉलेशन डन है, मतलब कोई इशू नहीं मेरे को मिला। हमने जेडीके इंस्टॉल किया, बिल्कुल परफेक्टली चल गया। इक्लिप्स भी इंस्टॉल किया, परफेक्टली चल गया। अगर आप इंस्टॉल करते वक्त कुछ भी इशू आएगा तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कंपैटिबिलिटी, आपने वर्जन का ध्यान नहीं रखा, 64 बिट का 64 बिट में नहीं डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, आपने इधर उधर कुछ ना कुछ हॉच पॉच कर दिया है, तभी वो गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज देयर विल बी नो इशू एट ऑल। तो अभी तो जस्ट मैंने दो सॉफ्टवेयर बताया, जेडीके एंड इक्लिप्स, जो कि डाउनलोड करना है आपको, इंस्टॉल करना है, देयर इज नथिंग मच थिंग, राइट, ये तो बहुत इजी है, राइट। अब जो है, थोड़ा आते हैं इंस्टॉलेशन। जब आपने जेडीके इंस्टॉल किया, थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म में जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा था। जेडीके हमारा 64 बिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फोल्डर कहाँ बनेगा, 64 बिट वाला इसमें जाएगा, जावा फोल्डर, देखिए, राइट। अब जो है, अगर आप देखें तो यही था, देखिए देर इज टू थिंग्स, जेआरई भी आ गया है एंड जेडीके। जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो एक जेआरई आता है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ये जावा डेवलपमेंट किट है, आप जान गए। जावा डेवलपमेंट किट कंसिस्ट, क्या क्या रखता है, जावा कंपाइलर, रिमेंबर दिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज, एंड प्लस जेआरई, प्लस जेआरई, दो चीज होता है। जेडके जब इंस्टॉल करते हैं तो आपका दो चीज इंस्टॉल होता है, जावा कंपाइलर एंड जेआरई। जेआरई क्या करता है, अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। थोड़ा, जेआरई इज नथिंग बट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब देखिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है, नेम इटसेल्फ इज सेइंग लाइक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, सी दिस,
ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अभी हमने भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जावा का कोड लिखने के लिए। इन्वायरमेंट इज नथिंग बट कि इन्वायरमेंट को सोचो इस तरीके से कि इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा कोड लिख सके। तो हमने वो इन्वायरमेंट अभी बना दिया अपने लैपटॉप में, जावा इंस्टॉल कर लिया और इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया। इसका मतलब हमने इन्वायरमेंट रेडी कर दिया जावा का कोड लिखने के लिए। जो इन्वायरमेंट चाहिए हमने वो चीज अपने लैपटॉप में सेटअप कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। थोड़ा टेक्निकल बोलते हैं कि इन्वायरमेंट 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 इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर विच नीड टू बी इंस्टॉल इन योर सिस्टम टू इन ऑर्डर टू वर्क ऑन जो भी टारगेट है, जो भी चीज करना चाहते हो उसको काम करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। तो वो आपका क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट रेडी हो गया। अब यहाँ पर जेआरई मतलब जावा, लेट्स से जावा रन टाइम, रन टाइम इन्वायरमेंट, लेट्स से एनवी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये आपका कोड लिखने के लिए हेल्प नहीं करेगा, ये आपका हेल्प करेगा रन करने के लिए। नाम से ही पता चला, नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? सी दिस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये इसका मतलब जेआरई इज नथिंग बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जावा में सारा चीज सॉफ्टवेयर ही है, राइट? जेआरई इज नथिंग बट वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, जब आपने जेडीके इंस्टॉल किया तो जेडीके जब इंस्टॉल किया तो देखो ना, जेआरई भी कंपाइलर भी दिया और जेआरई दिया। जेआरई इसलिए दिया है कि आपको जो कोड आपने लिखोगे उसको रन कराने के लिए कुछ चाहिए ना। रन नहीं कराओगे तो फिर कोड कैसे पता चलेगा कि आपने सही लिखा कि गलत है, और काम भी कैसे करेगा फिर अगर रन नहीं कराओगे। तो रन कराने के लिए उन्होंने जेआरई दिया, और जेआरई के लिए जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए इन्होंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए ना, ये देखिए, ये है जेआरई। अगर आपने जब प्रोजेक्ट बनाया था, तो अगर आप देखिए, अगर मैं एक कोई सिंपल सा पहली बार प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो आप एकदम बिल्कुल देखिए ब्लैंक है, ये बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं है। आप पहली बार जब ऐसे खोलोगे तो आप फाइल में जाओगे, फाइल में जाकर के न्यू, न्यू एंड एक, देखिए यहाँ पर जेपीए प्रोजेक्ट है। अगर आपको जावा प्रोजेक्ट बनाना है, देखिए जावा प्रोजेक्ट के लिए अदर में जाइए और यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट, राइट? हमें जावा प्रोजेक्ट बनाना है। आप जेपीए प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अभी हम लर्निंग फेज में है तो हम डिटेल में बहुत डीप में नहीं जाना चाहेंगे। आपको एक बेसिक वे से ले जाएंगे और सारा चीज मैं बताऊंगा। देखिए मेवन प्रोजेक्ट भी है, हम लास्ट में मेवन प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी फॉर टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जावा प्रोजेक्ट। अदर में जाकर के देखिए यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट है, और सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए। अब जब नेक्स्ट करेंगे आप, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको जावा का प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। क्या नाम लिखना? तो लिख देंगे जो भी आपका प्रोजेक्ट हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम करें, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें, तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। लेट्स से somebody इज वर्किंग ऑन फेसबुक, तो फेसबुक प्रोजेक्ट। लेट्स से कोई किसी पे भी काम कर रहा है तो वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे लर्निंग जावा जस्ट इमेजिन, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब ये सी बात है, सब लोग किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिनिश इट, सी दिस। अगर ये आपका, ये देखिए, ये जो भी यार आप एस कर दीजिएगा उस प्रोजेक्ट का नाम देकर के। अगर आप देखें यहाँ पर, तो देखिए ये जेआरई भी साथ साथ में आ रहा है। ये जेआरई क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि आपको कोड रन करने के लिए ये इन्वायरमेंट रेडी कर रहा है। ये इन्वायरमेंट आपको साथ साथ में, इसके लिए कुछ करना नहीं। देखिए इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे फाइलें हैं। सो ये फाइल आपको फैसिलिटेट करेगा कोड रन करने के लिए। इस, ये देखो सिंपल सा जार फाइल है, एक्सटेंशन देखिए इसका, डॉट जार, डॉट जार, राइट? So .jar is nothing but a combination of it containing a lot of classes. It containing a lot of classes. क्या होता है classes? We will discuss in detail. बहुत सारे फाइलें रखता है। ये आपका क्या करता है, आपको बहुत हेल्प करता है। अगर ये जेआरई नहीं रहेगा आपके सिस्टम में तो आपका कोड रन नहीं होगा। And see this version also it's showing here 1.8, right? So all detail। और जो हम कोड लिखेंगे ये सोर्स फोल्डर के अंदर कोड लिखेंगे। सारा जो कोड लिखेंगे तो ये एक फोल्डर है। अगर आप देखें तो हमने क्या किया था अभी, हमने कहा था कि जो भी हम यहाँ लिखेंगे इस इक्लिप्स में, ये कहाँ से होगा, मेरा वर्क स्पेस में से होगा, राइट? अभी हमने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पर कि जावा रिलेटेड ऑल स्टफ, राइट? ये ऑल कोड रिलेटेड स्टफ, राइट? तो अब देखिएगा इसमें हमने यहाँ तो आगे कुछ नहीं किया, लेकिन जो इक्लिप्स में किया है वो यहाँ अपने आप आ गया होगा। देखिए, देखिए यही तो बनाया था मैंने, लर्निंग जावा, ये मैंने बनाया था। देखिए ये सब अपने आप हो रहा है।
तो सारा जो स्टफ यहाँ कर रहे हो इक्लिप्स में कर रहे हो आप, जो कुछ भी यहाँ कर रहे हो वो इस फोल्डर में हो रहा है एक्चुअल में। इसीलिए हम इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस समझ गए होगे आप लोग नेम, राइट। सो अगर आप यहाँ पर एक कोई भी क्लास बनाते हो, क्लास क्या है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन क्लास, लेट्स से क्लास, और यहाँ पर पैकेज का नाम भी देना रहता है, लेट्स से डेमो फॉर टाइम बिंग, फर्स्ट क्लास, लेट्स से फर्स्ट क्लास, इसको सेव करते हैं, फिनिश। देखिए यहाँ पर आपने एक क्लास बनाया, ये देखिए ये सब बन रहा है ना, ये साथ में फोल्डर में भी चल रहा है। तो मतलब जो चीज लिखोगे क्लिप्स में ये यहाँ भी दिखता जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सोर्स में, सोर्स में ही तो कोड लिखते हैं। अब देखिए डेमो ये बनाया था मैंने, और ये फर्स्ट क्लास, राइट। सो ये वर्क स्पेस है। अब हम ये कहना चाह रहे थे कि गाइस इक्लिप्स की जरूरत हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बहुत सारा शॉर्टकट देता है, बहुत हेल्प करता है। कोई भी गलती करोगे सारा बताएगा, रन इन्वायरमेंट भी दिखा रहा है यहाँ पर सब कुछ। लेकिन इन केस अगर आप इक्लिप्स नहीं यूज करना चाह रहे हो जस्ट फॉर टाइम बिंग, राइट, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं कि बिना इक्लिप्स के भी हम कोड लिख सकते हैं। यस लिख सकते हो। चलो मैं बिना इक्लिप्स के भी कोड लिखता हूँ, जैसे इमेजिन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज कैंसिल करते हैं, रुक जाओ। एक फोल्डर बनाता हूँ जो अपना कोड यहाँ लिखूंगा मैं, ये टेस्ट में क्या है, राइट, ये भी बनाया था मैंने सैंपल। एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, जावा का सारा कोड। जैसे अपना खुद एक फोल्डर, टेस्ट जावा, जैसे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक नोटपैड में कोड लिखूंगा, न्यू टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल, फर्स्ट जावा। जस्ट इमेजिन कि हमने ये ऐसे लिखा, इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, राइट। लिख दिया मैंने, लेट्स से जैसे क्लास पब्लिक। अब देखिए आप लिखते, अगर आप शुरू करते तो आपको पता ही नहीं कि क्या करूं। इक्लिप्स ये हेल्प करता है आपका। पब्लिक क्लास, लेट्स से हमने क्लास का नाम रखा फर्स्ट जावा, राइट। और यहाँ कोड लिख रहा हूँ सब कुछ बिना किसी एडिटर के। अब मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग। ये मुझे याद है तब मैं लिख पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सिस्टम, अब ये चीज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है ना, अभी जावा तो आता ही नहीं है। तो ये नोटपैड में लिखना इज वेरी टफ फॉर एवरीवन। हम इतने सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी नोटपैड में नहीं लिखा आज तक। बट ये जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लिखा जा सकता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाता है, सेमी कॉलन, एंड हेलो हेलो जावा, जैसे इमेजिन। ये मैंने कोड लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया। रिमेंबर दिस, ये आपका टेक्स्ट फाइल नहीं होना चाहिए। जावा का कोड जावा में सेव होना चाहिए, राइट। टेक्स्ट फाइल थोड़ी ना हमें रन कर पाएंगे। तो यहाँ टेक्स्ट फाइल ना करके सेव करना होगा, ऑल फाइल लिखना है, और इसका एक्सटेंशन क्या लिखना होगा, डॉट जावा, राइट। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब देखिए ये आपका जावा फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट फाइल तो ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को जावा रन नहीं करता। जावा जेडीके रन करता है इस जावा फाइल को। इसका मतलब इसको खोलोगे तो आपको वही कोड है, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोड है। देखिए आप सीधी वही कोड है इसमें। लेकिन ये फाइल मैंने जावा फाइल, पीडीएफ फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, एक्सेल फाइल होता है, मतलब इसको मैंने जावा फाइल में सेव किया है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अब इस कोड को मुझे रन करना है। लेट्स से इसे अगर मैं रन कराऊं इस कोड को, देखिए मैं किसी चीज का यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी इक्लिप्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज का नहीं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रन कराना चाहूँ तो क्या करूंगा मैं,
इस कोड को रन कराना चाह रहा हूँ, देखो जावा में मैंने लिखा है। सो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सीएमडी खोलूंगा, सीएमडी के थ्रू रन कराऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन होता है। तो सीएमडी खोलने के लिए आपको क्या करना है, लेट्स से, तो यहाँ मैंने सीएमडी लिखा, यही फोल्डर में सीएमडी लिख करके वो खोल देता है। आपको क्या, मैंने सीएमडी कैसे खोला मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट। आप ये इसके एड्रेस बार में जाइए, राइट, ये लोकेशन जहाँ पे है, इसमें आप हटा दीजिए, यहाँ पर सीएमडी लिख दीजिएगा, ठीक है, सीएमडी, और एंटर मारिएगा तो आपको वही खोल देगा, उसी पाथ पे देखिए, राइट। आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं जावा सी एंड, जो क्लास का नाम था, क्या क्लास का नाम हम देखा था, फर्स्ट जावा, फर्स्ट जावा डॉट जावा फाइल है, राइट। रन कराते हैं, कह रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट। कह रहा है जावा सी, अब ये कह रहा है कि जावा सी कमांड मुझे पता ही नहीं चल रहा है, राइट। वन सेकेंड, लेट मी सी, क्यों नहीं पता चल रहा है। दो रीजन हो सकता है इसका, अगर ये कमांड नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये जावा सी कमांड नहीं मिला। अब जावा वर्जन थोड़ा देख लेते हैं, जावा हाइफन वर्जन यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन यहाँ से जावा वर्जन चल रहा है, देखिए जावा कमांड तो चल रहा है, लेकिन जावा सी कमांड नहीं चल रहा है, राइट। अब ये क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी सी द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके साथ भी ये इशू आए तो आपको करना क्या होगा, आपको ये दिस पीसी, जैसे हमने गए थे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाइएगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, आप एक बार मैं पाथ देखना चाह रहा हूँ कि पाथ सेट है कि नहीं सेट है। देखिए यहाँ पर इसको ये कॉपी कर लीजिए पाथ, देखिएगा मेक श्योर कि ये पाथ गड़बड़ ना हो, जस्ट कॉपी करिएगा, खेलिएगा नहीं इस पाथ के साथ, बहुत दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज। तो ये मैंने पाथ पाथ यहाँ पर देख लिया, और ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि जावा का पाथ यहाँ पर सेट है कि नहीं। सो सीरीज, ये कुछ 86 वाले में सेट है, राइट। और देखता हूं मैं प्रोग्राम फाइल, एक काम करते हैं फिर, ये हम एक काम अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, ये देखिएगा सबके सिस्टम में हो सकता है करना पड़ जाए। ये आपको क्या करना है, अगर ये पाथ जावा का नहीं दिख रहा है वहां पर, तो आपको क्या करना है, जेडीके में जाना है, बिन फोल्डर तक का पाथ आपको लेना है। बिन फोल्डर तक का पाथ क्यों लेना है, क्योंकि हम जो कमांड चलाना चाह रहे हैं वो कहाँ अवेलेबल है, यही कमांड हम खोज रहे थे। देखिए जावा कमांड चल रहा था, जावा सी कमांड नहीं चल रहा है। अब जावा कमांड इसलिए चल रहा है, मैं बताऊंगा अभी। तो आप इसको पाथ यहाँ पर बिन फोल्डर तक का ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए ये पाथ, राइट। और आपको करना क्या है, ये देखिए गड़बड़ ना हो। अब सीएमडी के बाद एक सेमी कॉलन लगाइएगा, देखिए हर एक चीज सेमी कॉलन से सेपरेटेड है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हर एक नया चीज सेमी कॉलन से सेपरेटेड होगा, जब भी कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं तो सेमी कॉलन से सेपरेटेड होगा, रिमेम्बर दिस। तो मैं भी ऐड करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा ऐसे, दैट्स इट। तो वही मैं करने जा रहा था, तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया, जो मैंने पाथ कॉपी करी थी उसके यहाँ पे पेस्ट कर दिया सीधे से। तो यहाँ से सेमी कॉलन से ये ओके करता हूँ, कैंसिल, लेट मी सी नाउ। अब मैं इसको एक बार क्लोज करके फिर से करता हूँ, सीएमडी से। अब मैं जावा सी देखता हूँ पहले का, देखो जावा सी कमांड पकड़ लिया, ठीक है। अब देखिए जावा सी हाइफ, मैंने क्या बोला था, जावा सी फर्स्ट, क्या था फर्स्ट जावा,
फर्स्ट जावा डॉट जावा फाइल हमें रन कराना है, राइट। ये है मुझे रन कराना है, यही फाइल है जिसको हम कोड रन कराना चाह रहे हैं अगर आप देखें तो। सो अब देखिए ये कर रहा है। अब देखिए जो आपने जावा सी चलाया कमांड, अभी कोई एरर नहीं आया, चल गया। क्या हुआ, क्या जावा सी चलाने से क्या हुआ, ये जावा सी क्या है, पहला क्वेश्चन। हमने बताया जब जावा इंस्टॉल कर, जेडीके इंस्टॉल कर, तो जावा कंपाइलर, ये जावा कंपाइलर है। जावा सी इज नथिंग बट जावा कंपाइलर। जावा सी जावा सी कमांड चलाना मतलब आप कंपाइलर से बोल रहे हो कि कंपाइलर जाओ इस फाइल को कंपाइल करो, चेक करो कि सब कुछ सही है इसमें, सिंटैक्स जाके चेक करो, सिंटैक्स। तो वो गया सिंटैक्स चेक करने और कह रहा कि सब कुछ ठीक है, अगर वो कुछ भी गड़बड़ होता तो यहाँ एरर मारता, यहाँ पर एरर देता। तो कोई गड़बड़ नहीं मिला उसे, और वो कह रहा है कि कोड जिसने भी इस फाइल में लिखा है सब कुछ सही है, कोड जिसने भी इस फाइल में लिखा है सब कुछ सही है, अदरवाइज हम एरर मारते हैं। और जावा सी जावा कमांड ऑफ, अब मैं रन कराने के लिए आपको, हमें प्रिंट करना चाहिए हेलो जावा, देखो चल गया कोड, राइट। हमने कोड तो लिखा था वही, यही लिखा था हेलो जावा का। मैं सब क्लोज करता हूँ। सो अगर देखिए, 1 सेकंड गाइस, हाँ, अगर आप ये देखें तो सबसे पहले मैंने ये रखा था, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या मैंने लिखा था, कोड तो ये वाला फाइल था, देखिए हेलो जावा प्रिंट कर दिया, सब कुछ सही था। मैं एक गलती करता हूँ, ये सेमी कॉलन हटा देता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ सब कंपाइलर, कंपाइलर को बोलूंगा कंपाइलर जाओ फिर से वो फाइल चेक करो तो। सी कंपाइलर क्या करता है, कोड का सिंटैक्स चेक करता है, कोड का सिंटैक्स चेक करता है। मैं चलता हूँ फिर से, सीरियस एरर आ गया, कह रहा है कि लाइन नंबर 6 पर एक एरर मिल रहा है जो कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है। देखिए ये कह रहा है यहाँ सेमी कॉलन डालो, देखो पीछे एरो मार दिया ऊपर, कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा के पीछे सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है, तो ये एक एरर आ रहा है, राइट, एक एरर है। देखिए बता रहा सेम चीज अगर आप इक्लिप्स में कर रहे हैं तो आपको ये सब रन कराने की जरूरत नहीं है। देखिए इक्लिप्स का क्या फायदा है, सबसे अच्छी चीज ये आपको, सॉरी, मेन मेथड, ये आपका देखिए सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर देगा आपको कि, यही तो लिखा था मैंने, सीरीज। और ये देखिए ये यही बता दे रहा है, देखिए यही तो, यही कोड बिल्कुल हूबहू मैंने इस फाइल में लिखा है, जो एक, जो मैंने फाइल बनाई हुई है यहाँ पर, सॉरी, इस वाले फाइल में से देखिए सेम कोड लिखा हूं मैं, यहाँ भी सेमी कॉलन यहाँ नहीं लिखा तो आपको पता नहीं चला कि क्या एरर है, लेकिन इक्लिप्स आपका क्या किया, आपको बता दिया यहीं पे। तो आपको ये हेल्प करता रहेगा, देखिए कह रहा है कि सेमी कॉलन लगाओ, देखिए यही एरर आपको वहां भी कंपाइलर दे रहा है, देखिए देखिए सेम एरर, राइट, सेमी कॉलन इंसर्ट द सेमी कॉलन, तो ये इक्लिप्स बता दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रन कराने पे पता चला कि वहां पे इशू है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोड तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लगाओगे, फिर से रन कराओगे आप, कंपाइलर सी चेक करोगे कंपाइलर क्या करता है, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछे कि कंपाइलर क्या करता है तो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। आपको लाइव दिखाया कि कंपाइलर क्या कर रहा है, देखिए अभी एरर नहीं आया कोई, चल गया। अब जावा कमांड चलाओ, जावा, क्योंकि जावा कमांड से ही जावा का कोड रन होता है, जावा सी से कंपाइल करता है कोड, कंपाइल को चेक करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। और जब जावा सी चल जाता है परफेक्टली फाइन, देन यू हैव टू रन जावा कमांड, सीरीज हेलो जावा, नाउ इट्स प्रिंटिंग हेलो जावा, ठीक है। एक चीज बताते हैं, चलो अब मैं बिना जावा सी चलाए, अब जावा
देखो फिर से मैं चला दूंगा, फिर से वही प्रिंट करेगा, फिर से चला दूंगा, फिर से वही प्रिंट करेगा। देखो जावा सी डायरेक्टली मैं जावा सी विदाउट जावा सी चलाए, केवल जावा कमांड चला रहा हूँ तब भी चल जा रहा है। अब ये चल कैसे रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये कहाँ से आ गया, मैंने तो ये बस बनाया था, क्वेश्चन एराइजेस राइट। ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने बनाया नहीं था, मैंने तो वो ये बनाया था। इसको डिलीट मारते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो हमने ये तो कोड तो ये था, मेरा कोड तो यही है, हमने एक ही फाइल रखा था। मैं क्या करता हूँ, देखिएगा ये फोल्डर बगल में दिख भी रहा है, राइट। मैं क्या करता हूँ, अब मैं वही कोड चला रहा हूँ, फिर से कह रहा एरर, कुड नॉट फाइंड और लोड क्लास, सी दिस क्लास फर्स्ट जावा। कह रहा है कि क्लास फर्स्ट जावा उसे नहीं मिला, जबकि है तो क्या हुआ, क्यों नहीं मिला, पहले तो मिल रहा था, देखो वही चीज चल रहा था, अब क्यों नहीं मिला। रिमेंबर दिस, अब कंपाइलर चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंपाइलर से कंपाइलर चलाए कमांड। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिए अभी बन गया। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर दो काम करता है, रिमेंबर दिस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाइलर और पूरा जावा इसी बेस पे है। आपको मैं जो प्रोजेक्ट बना, ये जो वर्क स्पेस दिखाया मैंने, अगर आप वर्क स्पेस देखें, जो जो कोड मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये मैं बनाता है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें क्या बन गया है, ये अलग अलग फोल्डर ये सब, राइट। ये देखा जाए तो बिन फोल्डर क्या है, सेटिंग तो समझ में आ रहा है, कुछ सेटिंग होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन बिन फोल्डर तो नहीं है। यहाँ पे क्लिप्स में अगर आप देखें, यही है, यहाँ बिन फोल्डर कहाँ है, एसआरसी तो दिख रहा है, लर्निंग जावा के अंदर एसआरसी बस दिख रहा है, लेकिन बिन फोल्डर तो नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बिन फोल्डर क्या है, तो आपको अभी अब समझ में आएगी कि क्या हाँ बिन बिन फोल्डर है, क्या उसका पर्पज है, सब समझ में आएगा अभी आपको। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि हमने तो कोड यहाँ पर हमने तो केवल कोड लिखा था, ये जावा फाइल, फर्स्ट जावा फाइल का। एंड व्हाट इज पर्पज ऑफ दिस वन, ये इसका मतलब कंपाइलर इसको बना रहा है। कंपाइलर का दो काम होता है, अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपाइलर का दो काम होता है। कंपाइलर क्या करता है, कोड का सिंटैक्स चेक करता है कि इज एवरीथिंग इज करेक्ट इन द जावा फाइल, क्या सिंटैक्स वाइज सारा कुछ कोड सही लिखा गया है। और अगर सब कुछ सही लिखा गया है, देन इट विल क्रिएट वन क्लास फाइल। सी ये कौन सा फाइल है जो हमने बनाया था, वो क्या था, जावा फाइल। और जो कंपाइलर बनाया है, कंपाइलर कब हमने इंस्टॉल किया था, जब हम जेडीके इंस्टॉल किए थे, राइट। कंपाइलर तो हमारे सिस्टम में आ गया था। तो कंपाइलर का दो काम होता है, एक तो सिंटैक्स चेक करना है कि वट एवर कोड वी हैव रिटन वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। अगर इफ दैट इज करेक्ट, देन इट विल क्रिएट वन क्लास फाइल। सी दिस, ये क्लास फाइल है, ये जावा फाइल। हमने जावा फाइल बनाया था, कंपाइलर ने क्या बनाया, क्लास फाइल। इसका मतलब एक्चुअल जो काम होता है वो क्लास फाइल पे काम होता है। क्योंकि देखिए जब मैं इसको रन करा रहा था, अब देखिए जावा ये वाला चलाऊंगा तो चलेगा, हेलो जावा। जावा एक्चुअली काम करता है किस पर, क्लास फाइल पर। अगर क्लास फाइल नहीं अवेलेबल है तो आपका कोड नहीं रन करेगा। इसका मतलब इसके अवेलेबल रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं, चलिए इसको डिलीट मार दिया, अब जावा चलाइए, तब भी चल रहा है। तो सिलेनियम वालों ने आपको क्या दिया, आप सिलेनियम जब पढ़ोगे तो जानते हो आप लोगों ने, आपको सिलेनियम वालों ने क्या दिया है, आपको सिलेनियम वालों ने ये क्लास फाइल दिया है। कहा है उन लोगों ने, सिलेनियम चाहे कहीं भी जाएंगे तो सिलेनियम जो डॉक्यूमेंट जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे सिलेनियम के साइट से, वो साइट
वो जो फाइल हम डाउनलोड करेंगे वो सारे क्लास फाइल डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जावा तो काम करती है क्लास फाइल पर। वो हमको कोड क्यों देंगे? कोड मतलब ये चीज वो हमको कोड नहीं देंगे, वो हमको देंगे ये फाइल। हम इसको डाउनलोड करते हैं और ये अपने सिस्टम में डालते हैं, क्योंकि जो जेवीएम है, जो जावा है, जो जेवीएम कोड रन करा रहा है, वो इस ये फाइल खोज रहा है। तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। अगर वो हमें कोड दे देंगे तो उनका कोड हमें मिल जाएगा, तो हम तो यार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि यही चीज इसमें भी लिखा होगा, तो नहीं। चलो देखते हैं इसको खोल करके। इसको तो आपने खोल करके देख लिया, क्योंकि ये आप ही ने लिखा है। लेकिन इसमें क्या है, इसको तो कंपाइलर ने बनाया है। कंपाइलर क्या करता है, लेट्स ओपन दिस एंड सी दिस की क्या है इसमें। ओपन विथ लेसन नोटपैड, हम खोलेंगे लेसन नोटपैड से। सी दिस, ये बाइनरी फाइल है। रिमेंबर दिस गाइस, क्लास फाइल इज नथिंग बट बाइनरी फाइल। इसको आप छेड़ भी नहीं सकते। अब ये किसी को दोगे, आप हमें बताओ, अगर ये फाइल किसी को दोगे तो वो केवल यूज कर सकता है, कोड भी नहीं देख सकता, केवल यूज कर सकता है, दैट्स इट। इसीलिए सिलेनियम वालों ने, अगर हम सिलेनियम के मेन वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको दिखाता हूं फिर से। सिलेनियम का अगर मेन वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, तो सिलेनियम वालों ने, जो हम सिलेनियम का जार फाइल डाउनलोड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिलेनियम का जार फाइल जो डाउनलोड करोगे, सिलेनियम का डॉक्यूमेंट जो फाइल डाउनलोड करोगे ऑटोमेशन के लिए, अपने लिए, वो कोड नहीं रहता है। रिमेंबर दिस, कहीं भी किसी से कुछ भी डाउनलोड करते हो, याद रखो लाइफ में आज के बाद से, कि कुछ भी जब आप डाउनलोड करते हो, वो कभी भी कोड नहीं रहेगा, वो क्लास फाइल रहेगा। अभी दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये जार फाइल है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में, नेसेसरी। तो अगर मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊं और सिलेनियम की बात करूं, तो आप देखिएगा सिलेनियम की जार, राइट। अगर आप देखें तो ये सब जार है, ये कोड नहीं है। ये क्या है सब, ये क्या है सब? ये एक बाइनरी फाइल है। इसको आप खोलोगे ना तो कोड नहीं देख पाओगे। अब देखिएगा, इक्लिप्स में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमने सिलेनियम की कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं पहले से दूसरे बैच में। तो अगर आप देखेंगे इसमें, लेट्स, तो हमने सिलेनियम की जार फाइल डाली हुई, सिलेनियम की कोड वहां से देखो, यही तो डाउनलोड किया था, अभी तो यही तो दिखा रहा था ना, ये सिलेनियम की यही तो डाउनलोड किया था मैंने। अब देखेंगे तो इसमें वो जो उन्होंने कोड लिखा है ना, वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें, अगर इसके अंदर जाएंगे खोल करके, तो देखिएगा सारे क्लास फाइल है। देखिए ना, डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास, डॉट जावा नहीं है, राइट। डॉट जावा मतलब, अगर आप इसकी बात में बोले, देखिए डॉट क्लास, देखिए जो बना हुआ है। तो ये सारा जो हम डाउनलोड किए थे वहां से, वो सारे क्लास फाइल है, ना कि कोड है। तो आपको कोई भी कोड नहीं देता है, रिमेंबर दिस। आपको कोई देता है तो क्या, क्लास फाइल देता है। और क्लास फाइल को कैसे हम यूज करेंगे, वो हम सिखाएंगे आपको। कोई अगर आपको कोड देता है और वो भी क्लास फाइल में देता है, देन हाउ टू यूज फॉर आवर पर्पस, आई विल शो, जब सिलेनियम में पढ़ाऊंगा। एनी क्वेश्चन गाइस, सो फॉर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो नो डाउट सर। नो सबको समझ में आया कि कैसे मैं रन? नो। ओके। तो आपने देखा कि हम कोड बिना इक्लिप्स के भी रन करा सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन जावा। अगर आप बहुत प्रोफिशिएंट हो तो आप कोड यहाँ लिखो, अपने आप करो बिना किसी की जरूरत के। एक चीज मैंने ये भी दिखाया कि आपको ये कमांड कमांड लाइन से, इसको कमांड लाइन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार कमांड लाइन से रन करा के दिखाओ, टेक्निकल टर्म्स में। बहुत जब आप ऑटोमेशन में घुसोगे किसी कंपनी में, सो दे विल बी टॉकिंग इन प्योर टेक्निकल, यार कमांड लाइन से रन करा दो, ऐसे बोलेंगे। सो कमांड लाइन इज नथिंग बट दे आर आस्किंग फ्रॉम द सीएमडी,
मे बी सम टर्मिनल, उसके लिए अलग से कहेंगे कि अच्छा ये इंस्टॉल कर लो, यहाँ से भी रन करा लो कमांड लाइन से, तो आपको बताया जाएगा। तो कमांड लाइन से बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ सीएमडी से रन कराने की, सीएमडी से बोल रहा है तो इस तरीके से आपको कोड रन कराना होगा गाइस। आते हैं, अभी तो ये आपको ओवरऑल दिया कि क्या है चीजें। अब हम आते हैं थोड़ा जावा, जब आपने इंस्टॉल किया था तो हमने बोला कि आपका जावा इंस्टॉल करा था आपने, तो देखिए जेडके एंड जेआरई, जेआरई आपको समझ में आ गया क्या है। आते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या आपने इंस्टॉल किया था। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आपने जेडके इंस्टॉल किया था, जेडके के अंदर आपने जावा कंपाइलर देखा ही, आपने जावा कंपाइलर है आपका, जावा कंपाइलर, कंपाइलर एंड इसके साथ साथ आपने जेआरई भी डाउनलोड कर लिया था, जेआरई दोनों साथ में था। अब जेआरई के अंदर क्या है, जेआरई के अंदर भी देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, कंपाइलर का आपने काम देख लिया, कोड कंपाइल करना, कोड कंपाइल करना मतलब कोड में कोई अगर एरर है सो इट विल टेल यू कि इस लाइन पर एरर है एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर। और दूसरा, उसका उस जावा फाइल का क्लास फाइल बना देगा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पूछता है तो ये दो चीज बोलना ही बोलना है, ठीक है। इसमें जेआरई में देखिएगा, जेआरई में आपका होता है जेवीएम, रिमेंबर दिस, जेवीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम, जेवीएम प्लस सम सपोर्टिंग फाइल, रिमेंबर दिस, सम। अब कौन से सम सपोर्टिंग फाइल, अब क्या है सम सपोर्टिंग फाइल, विल सी, बट जेवीएम अभी हमें ध्यान देखना है। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ध्यान से सुनिएगा, जेवीएम के भी कई कैटेगरी होते हैं, जेवीएम में भी बहुत सारे वो होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा, जेवीएम के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, ध्यान से इंटरप्रेटर बोलते हैं, और प्लस एक दूसरा जो होता है जीसी होता है, गार्बेज कलेक्टर। ये स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार गो थ्रू हो जाएगा, अगर इंटरव्यूअर पूछता भी है इससे तो आप समझ जाओगे। देखो जेआरई के अंदर जेवीएम होता है, सम सपोर्टिंग फाइल, लेट्स कम हियर, इस लाइन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। आप आओगे अगर, सो यहाँ पर आपका जेआरई है, देखिए। अब ये जेआरई के अंदर देखिए इतने सारे जार फाइल है, अगर आप जार फाइल को खोलोगे ना, अगर आप देखेंगे तो जार फाइल को अगर आप खोलोगे, ले से कोई भी जार फाइल इज नथिंग बट जावा आर्काइव। अब ये जावा आर्काइव, अब मैं जार फाइल खुद बना के दिखाऊंगा आपको, ये जो जार फाइल दिख रहा है ना, मैं ये जार फाइल बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे बिहाइंड द सीन। ये सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा फुल्ली समझ में आएगा कि क्या है पूरा इंटायर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमेशा लाइफ में कंफ्यूज रहोगे। अगर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट आपको सेटअप करने के लिए बोल दिया जाएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंज आएंगे जो समझ नहीं पाओगे कि किस वजह से एरर आ रहा, तो ये सारा चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें जार फाइल, तो जार फाइल हमने बोला था कि ये देखिए सब, इसको अब जाएंगे तो ये क्या है, क्लास फाइल है। जार फाइल में क्या होता है, कोड होता है, और ये क्लास फाइल के फॉर्म में रहता है। ये हम जब खुद बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये जो हमने कहा कि जेआरई के अंदर दो चीज होता है, जेवीएम होता है एंड सम सपोर्टिंग फाइल। जेवीएम अगर मैं बोलूं तो जावा वर्चुअल मशीन, आपको क्या लगता है कोई मशीन होगा, नहीं, मशीन जावा वर्चुअल मशीन जैसे नाम नाम दिया गया है कि जावा वर्चुअल मशीन, लेकिन वो भी एक कोड है, कोड जावा, जेवीएम मतलब एक जावा का एक पीस ऑफ कोड है जो लिखा गया है, जो वो सर्टेन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब है जेआरई के अंदर इस इतने में इतना जो फाइल दिख रहा है, इसी में जेआरई भी, जेवीएम भी है, और इसी में सम सपोर्टिंग लाइब्रेरी है। अब सपोर्टिंग जेवीएम तो आपको समझ में आ गया कि इसी में कोई ना कोई कोड होगा, जेवीएम के नाम से नहीं है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्लासेस को मिला करके एक जेवीएम बना दिया गया है। अब कुछ सपोर्टिंग फाइल, जैसे अगर हम कहें कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, लेट्स जस्ट इमेजिन, सिस्टम डाटा हम कर रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं, हम कर रहे हैं 16 का स्क्वायर रूट निकालो, जस्ट इमेजिन। तो आप 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेन मेथड हमें चाहिए, अभी मेन मेथड हम डिस्कस नहीं किए, इसलिए हम ज्यादा इस पर जोर नहीं डाल रहे हैं। मेन मेथड क्या है हम सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्लास बनाना भी नहीं सिखाया, जैसे आपको इंस्टॉलेशन पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या है चीजें। तो
मेन कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे मेन लिख करके, तो ये सजेस्ट करता है कि क्या चाहिए आपको, कंट्रोल स्पेस मेन लिख करके। तो मेन मेथड चाहिए हमें कोड रन कराने के लिए। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे कि पब्लिक का क्या मतलब है, ये सारा हम इसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेन मेथड हमें लिखना ही पड़ता है जब भी कोई कोड अगर आप रन करा रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है लेस सिस्टम का, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे बना बनाया कोड जेआरई ने दिया हुआ है, सम सपोर्टिंग लाइब्रेरी। सम सपोर्टिंग लाइब्रेरी मतलब जो आपके काम को आसान करेगा। जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जावा वालों ने जेआरई के अंदर कुछ सपोर्टिंग फाइल दिया है। अब वो सपोर्टिंग फाइल लिस्ट से क्या है, क्या है सपोर्टिंग फाइल, हम देखना चाहते हैं। मैं मुझे लेट्स से कि 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, इंट ए इक्वल टू 16, ये हमारा रिक्वायरमेंट था, इक्वल टू, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना था लेट्स से 16 का। तो जेआरई ने हमको बना बनाया कोड दे दिया है, सम सपोर्टिंग फाइल नथिंग बट उस फाइल में बना बनाया कोड पड़ा है, हम उसको यूज करेंगे हम अपने पर्पज के लिए। तो बहुत सारे बना बनाया कोड जेडीके जब हम इंस्टॉल कर रहे थे आ गया मेरे सिस्टम में बना बनाया कोड। वो बना बनाया कोड कौन कौन सा है, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ गया आएगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना है 16 का, तो आपका बना बनाया कोड है। देखिए मैथ्स, अब ये कहाँ से आया कैसे आया, ये बना बनाया कोड देखिए यहाँ से हमें बना बनाया मिल गया। और ये सब कहाँ से आ रहा है, अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अल्फाबेटिकली लिखा है, तो SQRT स्क्वायर रूट सी। अब इसमें मैं 16 डायरेक्ट लिख दूं चाहे ए लिख दूं, ए में स्टोर किया, तो अभी देखिएगा आपका, राइट। तो ये इसको प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैं बताता रहूंगा आपको कि अभी अभी तो मैंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसको हटा देते हैं, ये तो अब रिडंडेंट हो गया, राइट। और सेमी कॉलन लगा देते हैं और रन कराते हैं, आपका स्क्वायर रूट देखिएगा क्या आएगा। देखिए आ गया 4, राइट। तो ये जो स्क्वायर रूट निकालने का कोड कहाँ से मैंने लिया, इसी में अवेलेबल था। हम सारा चीज डिस्कस करेंगे अभी स्लोली स्लोली कि कैसे कैसे ये क्या मतलब है जार फाइल का, जार के अंदर क्या रखा गया। हम खुद जब अपना जार फाइल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जार फाइल होता क्या है, राइट। सो जैसा अगर आपने देखा मैथ डॉट स्क्वायर रूट, आई हैवंट क्रिएटेड एनी सच मेथड बट आई एम यूजिंग इट, राइट। सी दिस, इट्स सेइंग सजेस्टिंग लाइक क्या है क्या नहीं है, राइट। सो ये बना बनाया मेथड मिल गया। तो अगर आप यहाँ आते हैं फिर से, तो आप देखेंगे कि जेवीएम हमारा, जेवीएम वहां पर है और सम सपोर्टिंग लाइब्रेरी है। तो जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम हो गया, सम सपोर्टिंग लाइब्रेरी हो गया। अब आ गया जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर भी होता है, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। गार्बेज कलेक्टर मतलब अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब भी अन अननेसेसरी अगर स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है किसी के द्वारा, जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उस क्लास में जो लोग अननेसेसरी स्पेस ऑक्युपाइड किए हैं फ्रॉम रैम। रैम आपका सबसे ज्यादा, देखा जाए तो रैम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप का। अगर रैम में ऐसे कुछ लोग हैं हु आर जस्ट ऑक्युपाइंग द अननेसेसरी स्पेसेस, आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी स्पेस ऑक्युपाइड। सो गार्बेज कलेक्टर, सी दिस, गार्बेज एंड कलेक्टर, जो भी लोग गार्बेज, उसको तो वो लोग गार्बेज लगेगा, इन जेवीएम को कहेगा कि भाई तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्पेस मैं हटाता हूँ, तो वो गार्बेज हम दिखाएंगे कहां पर होगा। एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, सी समटाइम्स इन इंटरव्यू दे माइट आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब देखिए कहाँ कंपाइलर कहाँ था इंटरप्रेटर, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरप्रेटर जेवीएम के अंदर होता है, कंपाइलर क्या करता है ध्यान से देखते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है अभी हम डिस्कस करते हैं। इंटरप्रेटर देखिए जो आपका इंटरप्रेटर क्लास फाइल के साथ खेलता है, रिमेंबर दिस, इंटरप्रेटर क्लास फाइल के साथ खेलता है और कंपाइलर जावा फाइल के साथ खेलता है। पहला डिफरेंस, कंपाइलर क्या करता है, जो आपने कोड लिखा है उसको उसको चेक करता है कि
कोड क्या सिंटेक्स वाइज सब कुछ सही है, अगर सिंटेक्स वाइज सब कुछ सही है तो उसको क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। अब ये कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में देखिए, अगर आप देखें तो लेट्स से 4 लाइन, देखिए आपने एक ही बार में दोनों लाइन पे एरर बता रहा है, देखो कह रहा है कि इस लाइन पे भी एरर है और इस लाइन पे भी एरर है, कंपाइलर बता रहा है। कंपाइलर जो आप कोड लिखते हो तो क्लास फाइल जावा फाइल के साथ कौन खेल रहा है, कंपाइलर खेल रहा है। ये जावा फाइल है ना, देखिए देखिए ना, जावा फाइल नहीं है यहाँ पर डॉट जावा, जब जावा जावा फाइल के साथ कंपाइलर खेल रहा है, तो यहाँ कंपाइलर रोल प्ले कर रहा है। कंपाइलर आपको क्या करता है, वो बताता रहता है एक ही बार में हर जगह का कोड, एक ही बार में सारे लाइन, एक ही बार में सारे लाइन का कोड पकड़ करके चेक करता है कि कहाँ कहाँ एरर है, राइट। देखेगा कि यहाँ भी एरर है एक ही बार में। लेकिन कंपाइलर जब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर तो इससे कोई मतलब नहीं, इंटरप्रेटर तो इस फाइल में जाएगा, इंटरप्रेटर इस फाइल में, इंटरप्रेटर भी इंटरप्रेट करता है उस जो बाइनरी फाइल में बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जिग जैग 1 2 3 समथिंग इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जाता है वो भी लाइन बाय लाइन, वो ये कंपाइलर में क्या डिफरेंस, कंपाइलर एक ही बार में पूरे कोड को चेक कर लेता है कहाँ कहाँ गलतियां हैं, इंटरप्रेटर वो अपने हिसाब से चेक करता है कि क्या मेरे हिसाब से सब कुछ सही है कि नहीं है, वो भी चेक करता है, इंटरप्रेटर भी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपाइलर सारा समझ रहे हैं बिहाइंड द सीन क्या क्या चल रहा है, नहीं, इंटरप्रेटर मतलब कोड अब रन कराने जा रहा है, जब कोड रन कराने जा रहा है तो चेक करेगा कि क्या सारा कुछ सही है मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी, इसीलिए तो कभी कभी रन टाइम पे एक्सेप्शन आता है, जब रन होता है तब पता चलता है कि अरे यहाँ तो गड़बड़ था। कंपाइल टाइम तो कुछ नहीं बताता, कंपाइलर कुछ नहीं बताता है। आप देखते होंगे जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। देखिए कंपाइलर बोलेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप रन कराते हो तब आपको चैलेंजेस आने लगते हैं, तो वो कौन पकड़ता है, वो पकड़ता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर, लेकिन वो लाइन बाय लाइन नहीं, पहला लाइन चेक कर लेगा तो कहेगा ठीक है, तो फिर अगले लाइन पे जाएगा तो उसको चेक करेगा, फिर अगले लाइन में। लेकिन कंपाइलर क्या करता था, एक ही बार में सारे लाइन को बता दे रहा था। तो ये डिफरेंसेस है गाइस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो नाउ you are understanding it, right? So you should be able to say the difference. Yes. Any question guys so far? I think I have tried my level best to make you understand guys। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। आज मैं इतना ही सेशन रखूंगा, कल से मेरा जावा पे एक्चुअली स्टार्ट होगा और हर सेशन मेरा प्रैक्टिकली ज्यादा डिस्कशन होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ लगेगा कि ये मेरा छूट गया, मैं इतना कवर कर दूंगा, इतना कवर कर दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा सेशन के बाद, टू बी ऑनेस्ट। सो आज मेरा यही सेशन यहीं तक लूंगा। कल मेरा जावा का पहला सेशन होगा जिसमें हम क्लास बनाएंगे, कोई प्रोग्राम बनाएंगे और सारा इसके इक्लिप्स का सारे फंक्शंस देखेंगे और रन करा करके, और एक्चुअली स्टार्ट मेरा क्लास कल से होगा गाइस। Okay. सो एनी क्वेश्चन, इफ नॉट देन वी कैन क्लोज द सेशन गाइस। Not for now.